वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल मंगा पद्मनाभ प्रिया अलमेल मंगा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल मंगा पद्मालया पाहि अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि हरि प्रिये अलमेल मंगा पाहि मां पाहि अलमेल मंगा। सुप्रसन्ना पाहि अलमेल मंगा समुद्रतनया पाहि अलमेल मंगा सुरपूजिता पाहि अलमेल मंगा सरोजहस्ता देवी अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि हरि प्रिये अलमेल मंगा पाहि मां पाहि अलमेल मंगा। सौभाग्यदायिनी अलमेल मंगा सरसिजनयना अलमेल मंगा सर्वज्ञ शक्तिवे अलमेल मंगा सर्वं सहा पाहि अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि हरि प्रिये अलमेल मंगा पाहि मां पाहि अलमेल मंगा। दुःख प्रशमन अलमेल मंगा दुष्ट संहारिणी अलमेल मंगा शक्ति स्वरूपा अलमेल मंगा दान्त स्वरूपिणी अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि हरि प्रिये अलमेल मंगा पाहि मां पाहि अलमेल मंगा। ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி சேனல் திருப்பதி திருச்செங்கனூரிலிருந்து நேரலையில் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை பத்மாவதி தாயார் சமேத ஸ்ரீ போக ஸ்ரீனிவாசன் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்திரையில் கண்டு வணங்க அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் இரு கரங்கள் கூப்பி வரவேற்கின்றது. இன்று பிறந்த நாள் மற்றும் மங்கள திருமண நாளை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் அடியார்கள் மேன்மேலும் உய்வு பெற மங்களமாக வாழ்ச்சி பெற அல்லியம் பூமலர் கோதாய் அடிபணிந்தேன் விண்ணப்பம் சொல்லுகேன் கேட்டருளாய் துணை மலர் கண் மடமானே என்று பெரியாழ்வார் திருமொழியில் பிராட்டியை நோக்கி பிராட்டியுடன் கூடிய பெருமானே அனைத்து பக்தர்களையும் அடியார்களையும் காக்க ரட்சிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்ததைப் போல அடியார் பெருமக்களின் சார்பாக ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாரின் திருவடி பணிந்து பிரார்த்தித்து அன்பர்களை மகிழ்ச்சி பெற வாழ்த்தி வரவேற்கின்றது இன்றைய தினம். வேத பிரமாணங்களை நன்கு ஆராய்ந்து சேவித்தலால் தாயாரின் கல்யாண குண பூர்த்தியை பற்றி நன்கு தெளியலாம். நாம் சம்ஹிதைகளில் தாயாரின் மேன்மையை பற்றி கூறும்போது ஞானம், சக்தி, பலம், ஐஸ்வர்யம், வீரியம், தேஜசு ஆகிய குணங்களை உடையவள் என்று அறுதியிட்டு உரைத்துள்ளது. ஏனென்றால் இவள் ஸ்ரீனிவாசனின் பத்தினி அல்லவா? ஆகவே எம்பெருமானுக்கு உரிய அத்தனை குணங்களும் இவ்விடத்தில் சேர்த்து அல்லது இல்லை இல்லை இவளிடத்தில் உள்ள குணங்களே எம்பெருமானிடத்தில் ஒட்டி கொண்டது என்று சொல்லலாம்படி உள்ளது. ஸ்ரீ பராசர பட்டரும் ததந்தர்பாவாது துவாம்னா பிரதகபி தத்தே ஸ்ரீதிரபி என்று பெருமானை போல தாயாருக்கும் ஞானம், பலம் முதலியன நிறைந்து இருக்கின்றன. ஆனாலும் அவதார தசைகளில் அவள் தன்னுடைய ஞானம், பலம் இவற்றை கொண்டு தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக் கொள்வதில்லை. இவ்விஷயம் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை சேவித்த ரசிகர்களுக்கு நன்கு புலப்படும் அல்லவா? அப்படியென்றால் இவள்
ராவணனிடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்க வேணாமே, இவள் தன்னைத்தானே காத்து ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கலாமே, அவன் வந்தால்தான் தன்னை ரட்சிக்க வேண்டும், அவன்தான் தன்னை காப்பாற்றி அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று இருந்தாளே. இலங்கை அசோகவனத்தில் சீதாதேவி இவ்விடத்தில் இருந்தபொழுது, அதாவது ராட்சசிகளின் பலவித துன்பங்களால் அவதிப்பட்டாள், ராட்சசிகளால் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள். அச்சமயத்தில் தன்னுடைய ஞானம் பலம் இவற்றை கொண்டு ராட்சசிகளையும் இலங்கையும் அழித்து க்ஷண நேரத்தில் அழித்து விட்டிருக்கலாம். ராவணனை ஒரு புல்லாக பாவித்துதானே அவர் பேசினால் ராவணனை அழித்து விட்டிருக்கலாமே, இந்த துன்பங்களிலிருந்து விடுபட்டிருக்கலாமே. ஆனால் தாயார் அம்மாதிரி செய்தால் இல்லை. ஸ்ரீராமன் பாணங்களால் இலங்கையை அழித்து ராட்சசர்களை வென்று தன்னை மீட்க வேண்டும், அதுவே ஸ்ரீராமனின் வீரத்திற்கு அழகு என்று தன் சக்தியை காட்ட அது வாழாவிருந்தாள். அதுவன்றோ ஒரு தர்ம பத்தினியின் நிலை. அதே சமயத்தில் தன் அன்பர்கள் விஷயத்தில் ஞான சக்திகளில் பயன்படுத்தினாள். ராவணனின் குமாரன் இந்திரஜித்து ஸ்ரீராமன் ஹனுமானுடைய வாலிலே நெருப்பை வைத்தாள். தாயார் சீதாதேவியும் அக்னி பகவானிடத்தை வேண்டி ஹனுமனை தகிக்காதிருக்கும்படி பிரார்த்தித்துக் கொண்டாள். மேலே இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்குரிய அனைத்து கிரமங்களையும் வேத கோஷங்களையும் சற்று செவிமடுத்து பின்பே தாயாரின் குடலாசங்களை சேவிப்போம். அமிர்தாத்மாதமேகாபம் அமிர்தாஹரணம் விபும் பாஞ்சராத்ராகமாச்சாரியம் வந்தே வைகுண்டபூபதிம் ஸ்ரீசுகம் பரமாச்சார்யான் ஸ்ரீமச்சுகபுரீஸ்வரீம் பஞ்சராத்திர ஆகமபோதிம் பாரதர்ஷனமாஸ்ரயே. அஸ்மத்குருभ्यो நமः, அஸ்மத்பரமகுருभ्यो நமः, அஸ்மத்சர்வகுருभ्यो நமः, அஸ்மத்பரமேஷ்டிகுருभ्यो நமः. गुरुभ्यश्च तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे पुरुणीमहे च तत्र आद्यो దంపతి జగదాంపతి. అందరూ ఒకసారి స్వామి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేలు మంగవరద గోవింద గోవింద. మీ తల్లిదండ్రులకు, కులగురువులకు, దైవానికి, ఇష్టదైవానికి, స్వామి అమ్మవార్లకు నమస్కారం చేసుకోండి. ప్రాణాయామ విధానం తెలిస్తే ప్రాణాయామం చేసి సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. ప్రాణాయామ విధానం தெரிஞ்சால் प्राणायामம் பண்ணுங்கோ, संकल्प मुद्रला उकारुंगो. आप प्राणायाम जानते हैं तो प्राणायाम कीजिए और संकल्प मुद्रा में बैठिए. अंदर ఒకసారి స్వామి నమస్కారం చేసుకోండి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నం దిహదం విశ్వక్సేనం తమ ఆశ్రయే. గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోర అగ్నియా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్తే శ్రీ శ్వేతపరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపే భారతపరిషే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోర్దక్ష్యణ దిగ్భాగే कृष्णा कावेर्योर्मध्यदेशे आदिवराह क्षेत्रे सुवर्णमकरे उत्तरदिग्भागे पद्मसरोवरी दीप्तसमीपे शुकपुरी अग्रहारे वर्तमाने व्यावहारिकजां ध्रमाणेन प्रभवादिशिष्टिश्री विजयाभ्युदे नाम संवत्सराणामध्ये मङ्गलकर पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ वैशाखमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां शुभऋतौ इन्दुवासरयुक्तायां मखानक्षत्रयुक्त उब्बानक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरणे शुभयोग शुभकरणे मंगुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभऋतौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्प्रीत्यर्थं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य मकनिदानेककल्याणगुणगणैकदानस्य अपारकारुण्यसौशील्यसौहार्द सौन्दर्यवात्सल्य महोदये जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्री अलर्मेल मंगासमेत श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थम् राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य అందరూ మీ యొక్క గోత్రము, మీ పెద్దల పేర్లు, భార్యా పిల్లల పేర్లు అన్నీ కూడా ఒకసారి స్మరించుకోండి, సంకల్పం చేసుకోండి, प्रार्थना చేసుకోండి. எல்லாரும் உங்கள் பேரு, நட்சத்திரம், கோத்திரம், ஆற்றுல இருக்கிறவா பேர் எல்லாமே ஒரு வாட்டி स्मरण பண்ணிக்கோங்க, संकल्पम பண்ணிக்கோங்க. सब लोग आपका गोत्र नाम स्मरण कीजिए, संकल्प कीजिए.
చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుష అర్థ సిద్ధ్యర్థం ధన కనక వస్తు వాహనాన్ అభివృద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వ కార్యాన్ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం విశేషతః. మీకు ఏదైనా విశేషమైనటువంటి ప్రార్థన ఉంటే లేదా కోరిక కానీ మొక్కుబడి కానీ ఉంటే అమ్మవారికి ఒకసారి విజ్ఞాపనం చేసుకోండి. உங்கள் மனசில் ஏதாவது प्रार्थना இருந்தால் தாயாருக்கு விज्ञापனம் பண்ணிக்கோங்க. आप जिस कामना के लिए ये उत्सव कर रही है उस कामना को एक बार माता जी को विज्ञापन कीजिए. చెప్పండి. మమ మనోభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ అలర్మేల్ మంగా సమేత శ్రీనివాస నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య అనేన సహాయేన కారయిష్యే. అందరూ ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేలు మంగ వరద గోవింద గో. பயன்படுத்தினார் என்றால் முடிந்தும் எம்பெருமான் துணையோடு தான் பக்தர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சங்கல்பத்தோடு இருப்பவள் இவள். இருப்பினும் அடியார்கள் துன்பப்படும் போது வாளாவிற்க மாட்டாள். தன்னுடைய ஞான சக்திகளை பிரயோகித்து அவ்விடத்திலே காப்பாற்றுவாள். இது எப்படி? ஹனுமனை இந்திரஜித் வாலில் நெருப்பு வைக்கும் பொழுது அந்த அனுமானை தகிக்காதவாறு அக்னி பகவானிடத்தை தாயார் பிரார்த்தித்தாள். இந்த இலங்கையை தீ எரித்தலை தவிர அந்த தீ இலங்கையை எரித்தது தவிர ஹனுமனை எரித்தது இல்லை. ஆக பக்தர்களின் மேல் பாசம் வைத்த பரம் சுடராக இருக்கும் இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் இணை அடிகளே நாம் அடையத்தக்கதான திருவடி இணைகள் என்று அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஸ்ரீ பேயாழ்வார் 3ஆம் திருவந்தாதியில் சார்வு நமக்கென்றும் சக்கரத்தான் தண்டுழாய் தார்வாள் வரை மார்பன் தான் முயங்கும் காரார்ந்த வானமரு மின்னிமைக்கும் வண்டாமரை நெடுங்கண் தேனமரும் பூமேல் திரு. சுவாமி பேயாழ்வார் ஆரம்பித்தது திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் என்று இவர்தானே பிராட்டியோடு கூடிய எம்பெருமானை கண்டதாக சாதித்தருளியுள்ளது. ஆகவே முடிவான 100வது பாசுரத்திலும் சார்பு நமக்கென்றும் சக்கரத்தான் தண்டுழாய் தார்வாள் வரை மார்பன். தார்வாள் தார் என்றால் இவ்விடத்திலே மாலை. தார்வாள் வரை மார்பன் தான் முயங்கும் காரார்ந்த வானமரு மின்னிமைக்கும் வண்டாமரை நெடுங்கண் தேன் அமரும் பூ மேல் திரு என்று திரு என்றே முடித்திருக்கின்றார். இவ்வாழ்வார் துவக்கத்தில் திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் என்றே ஆரம்பித்துள்ளபடியால் முடிவாக 100வது பாசுரத்திலும் திருவென்றே நிறைவு செய்துள்ளார். ஒரு ஏற்றமிக்கதே. என்றென்றைக்கும் அடியார்களுக்கு அபயத்தை அளிப்பவள் இவள். கருணையே வடிவானவள் ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை பத்மாவதி தாயார். இவ்விடத்தில் நாம் கண்டு கொண்டிருப்பது பத்மாவதி தாயார். காஞ்சிபுரத்திலே பெருந்தேவி தாயார், ஸ்ரீரங்கத்திலே ஸ்ரீ ரங்கநாச்சியார் என்று ஒவ்வொரு திவ்ய தேசத்திலும் தாயார் எழுந்தருளியுள்ளார். இவ்விடத்தில் சொல்வது இவளுக்கு மட்டுமே தகும் என்றது அல்ல. எந்த திவ்ய தேசத்திற்கு சென்றாலும் அவ்விடத்தில் உள்ள தாயாருக்கு உள்ள ஏற்றமே தனிதான் அவ்விடத்தில். ஆகவே ஆழ்வார் பொதுவாக எந்த பாசுரத்தில் அனைத்து திவ்ய தேசங்களையும் சாதித்து அருளியுள்ளார்கள். ஆகவே 108 எத்தனையோ திவ்ய தேசங்கள் இருந்தும் ஆழ்வார்களின் ஈரச்சொற்களால் ஏற்றம் பெற்றதாலே தான் 108 திவ்ய தேசங்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆக அனைத்து திவ்ய தேசங்களில் உள்ள தாயார்களுக்கு உள்ள ஏற்றமே தனித்தான் அம்மா அல்லவா. ஆகவே அவருக்கு உள்ள கருணை, அடியார்கள் பால் குழந்தைகள் பால் உள்ள கருணை தயை என்பது தனிப்பட்ட முறையில் உறைந்துள்ளது. பெருமானின் மலை போன்ற பெரிய மார்பில் அகலையில்லேன் என்று நித்தியமாக உறைந்திருப்பவள் பொலிந்திரு இருண்ட வானில் கார்வானில் மின்னே போல் தோன்றி மலிந்து திரு இருக்கின்றாள். அத்தகைய திருவே தாயாரே நமக்கு தஞ்சமாக இருக்கின்றாள். ஒரு நாள் மட்டும் நாம் வேண்டும்போது மட்டுமல்லாமல் எப்பொழுதுமாகவே தஞ்சமாக தயாராக இருக்கின்றாள். அதாவது அன்று ஈன்ற கன்றுக்குட்டி எப்பொழுது தாய் பசுவின் மடியிலே வாய் வைத்தவுடனே பால் சுரக்குமா போலே எப்பொழுது நாம் கவலையுடன் எம்பெருமானை நினைக்கும் பொழுது, அதாவது பிராட்டியோடு கூடிய எம்பெருமானை நினைக்கும் பொழுது உடனே கருணை என்னும் பால் சுரந்து நம்மை ரட்சிக்கிறது என்பதே ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்துள்ளது இந்த பாசுரம். நமக்கு தஞ்சமாக என்றும் இருக்கின்றாள்.
முக்கியமாக பெருமான் திருவுடன் சேர்த்தி அனுபவித்து மகிழும் பிரபந்தமாக அமைந்துள்ளது இந்த பாசுரம். முதல் பாசுரமும் சரி, 100வது பாசுரமும் சரி. ஆக ஒரு பேட்டிகையாக அமைந்துள்ளது இந்த 100 பாசுரமும். தாயாரில் ஆரம்பித்து தாயாரில் முடிவடைகின்றது. மேலே சற்று சேவித்து திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சேவித்து அருள் கடாட்சத்தை மேலும் பெறுவோம். यद्दे पवित्रमर्चिषे ब्रह्मदेन पुनीमहे पवित्रेण सवेन च वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् तयामदन्तस्वधमाद्येषु वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो पृथिवी पयसा पयोभिः बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमान् तेनावो दिव्यङ्गसः इदं ब्रह्म पुनीमहे शिभिः संभृतकं रसम् सदिदं मातरिश्वना शिभिः संभृतकं रसम् क्षीरकं सर्पिर्मधोदकम् सुदुघाहि वयस्वतीः ब्रह्मणे समृतकं हितम् इमं लोकमथो अमान् देवैर्देवैः समाभृताः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ब्रह्मणे समृतकं हितम् आत्मानं पुनते सदा पावमान्यः पुनन्तु माम् सतोऽद्यामगं हिरण्मयम् ोदं ब्रह्म पुनीमहे सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये स्वस्तिर्मानुषेभ्यः शन्नो अस्तुद्विपदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रजापतिरश्वमेधमधुजता क्रामते समष्टादशभिरणप्रायुङ्गां प्राप्नोत् समाप्ताष्टादशभिरवारुन्धान् षष्टादशिना लभ्यन्ते यज्ञवैपदैराप्त्वा यजमानो वरुन्धे संवत्सरस्य वा एषा प्रतिमा यदष्टादशिनः द्वादशमासात् पञ्चत्तवः संवत्सराष्टादशः त्रिदशादशिना लभ्यन्ते संवत्सरमेव दैराप्रायजमानो वरुन्धे अग्निष्ठेन्यान् पशूनुपाकरोति करेषु युवे षष्टादशिनो जामित्वाय नवनवा लभ्यन्ते सवीर्यत्वाय यारण्ये सर्गस्थापयेत् व्यवस्थेतां विदापुत्रो यद्धानक्रामेयोः इदोरङ्ग्रामयोर्ग्रामान्तौ स्यादां क्षीकाः पुरुषव्याघ्राः परिमोषिणां व्याधिनीस्तस्करारण्ये स्वाजायेरन् तदाहुः अपसवो वा एते
यदारण्याः यदारण्ये सर्गः स्थापयेत् क्षिप्रे यजमानमरण्यं मृतकं हरेयः अरण्यायतनायारण्या पशव इति यत्पशोन्नालभेदाम् अनवरुद्धास्य पशवस्य यत्पर्यग्निगतानसुचेत् यज्ञवेशसङ्कुर्यात् यत्पशो नालभते तेनैव पशो न वरुन्धे यत्पर्यग्निगतानसृजत् यज्ञवेशसाय अवरुद्धास्य पशवो भवन्ति अयज्ञवेशसम्भवति न यजमानमरण्यं मृतकं हरन्ति राम्यै सर्गस्थापयति एते वै पशवः क्षेमो नाम संविदा पुत्राववस्यतः समध्वानक्रामन्ति समन्तिकं ग्रामयोर्ग्रामान्तो भवतः नर्क्षिकाः पुरुषव्याघ्राः परिमोषिणाः व्याधिनीस्तस्कराः अरण्येष्वाजायन्ते प्रजापतिरकामयतो भवलोकावरुन्धीयेति स एतानुभयान् वशो न पश्यते राण्यागश्चारण्यागश्च तानालभता तैर्वै सौभो लोकावरुन्ध राम्यैरेव पशुभिरिमल्लोकमवारुन्ध आरण्यैरमा यद्राम्यान् पशूनालभते इममेव तैर्लोकमवरुन्धे यदारण्यान् अमन्तैः अनवरुद्धो वा एतस्य संवत्सर इत्याहो चैतैतश्चातुर्मास्यानि संवत्सरं प्रयुङ्क्त इति एतावान् वै संवत्सरः चातुर्मास्यानि यदेते चातुर्मास्या पशवा लभ्यन्ते प्रत्यक्षमेव तैः संवत्सरं यजमानो वरुन्धे विवा एष प्रजया पशुभिर्रध्यते संवत्सरं प्रयुङ्क्ते संवत्सरः सुवर्गो लोकः स्वर्गं तु लोकं नापराह्नोति प्रजा वै पशव एकादशिनी यदेतैकादशिना पशवा लभ्यन्ते साक्षादेव प्रजामसो निजमानो वरुन्धे प्रजापतिर्विराजमसृजतां सा दृष्टा स्वमेधं प्राविशत् तान् दशभिरनुप्रायुङ्क्तान् तामाप्नोत् तामाप्त्वा दशभिरवारुन्धां यद्दशिना लभ्यन्ते विराजमेव तैराप्त्वा युजमानो वरुन्धे एकादशदशदा लभ्यन्ते एकादशाक्षरात् पृष्ठप्रैष्टभा पशवा पशो नैवावरुन्धे वैश्वरेवो वा स्वः आलादेवत्या पशवो भवन्ति अस्वसर्वत्राय नानारूपा भवन्ति तस्मान् नानारूपा पशवः बहुरूपा भवन्ति तस्मात् बहुरूपा पशवः समृद्ध्यै अस्मै वै लोकाय ग्राम्या पशवः लभ्यन्ते अमुष्मारण्याः यद्ग्राम्यां पशूनालभते त्वमेव तैर्लोकमवरुन्धे कमन्दैः भयान् पशूनालभते राम्यागश्चारण्यागश्च भयान् लोकयोरवरुद्ध्यै भयान् पशूनालभते राम्यागश्चारण्यागश्च उभयस्यान्नाद्यस्यावरुद्ध्यै भयान् पशूनालभते राम्यागश्चारण्यागश्च उभयेषां पशूनामवरुद्ध्यै त्रयस्त्रयो भवन्ति त्रय इमे लोकाः येषां लोकानामाप्त्यै ब्रह्मवादिनो वदन्ति तस्मात् सत्यात् अस्मिन् लोके बहवः कामा इति भवानेभ्यो देवताभ्योऽन्ये पशवा लभ्यन्ते तस्मिन्नेव तल्लोके कामान् ददाति तस्मादस्मिन् लोके बहवः कामाः त्रयाणां त्रयाणाकं सहवपाजोति
त्र्यावृतो वै देवाः त्र्यावृत इमे लोकाः येषां लोकानामाप्त्यै येषां लोकानां क्लृप्त्यै पर्यग्निकृतानारण्यानत्सृजन्त्य हि कंसायै युञ्जन्ति प्रथमविद्याः असौ आदित्यो ब्रध्नान् आदित्यमेवास्मै अनक्ति अरुषमित्याह अग्निर्वा अरुषः अग्निमेवास्मै अनक्ति चरन्तमित्याह वायुर्वै चरन् वायुमेवास्मै अनक्ति हरिदस्सुष इत्याह इमे वै लोकाः परिदस्सुषः मानेवास्मै लोकान् युनक्ति रोचन्ते रोचनादिवीत्याह नक्षत्राणि वै रोचनादिभिः नक्षत्राण्येवास्मै रोचयति युञ्जन्त्यस्य काम्येत्याह कामानेवास्मै हनक्ति हरिविवक्षसेत्याह मे वै हरिविवक्षसा मे एवास्मै हनक्ति सोनाधृष्णो निर्वाहसेत्याह अहोरात्रे वै निर्वाहसा अहोरात्रे एवास्मै हनक्ति एता एवास्मै देवताय नक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै एतं कृण्वन्न केतव इति ध्वजं प्रतिमुञ्चति यस एवैनगमुराज्ञाङ्गमयति विमोदस्यैव भवति प्रतीकमित्याह यथा विदुरेवैतत् एते पुंसानस्सविदः पूर्व्यास इत्यध्वर्ययजमानं वाचयत्यभिजित्यै परावा एतस्य यज्ञयेति यस्य पशुर्वाकृतोऽन्यत्र वेद्यायेति एतग्रस्तोदरेतेन पठा पुनरस्वमावर्तयासि नैत्याह वायुर्वै स्तोता वायुमेवास्य परस्ताद्दधात्यावृत्यै यथा वै हविषोर्हितस्य स्कन्दति एवं वा एतदश्वस्य स्कन्दति यदस्योपाकृतस्य लोमानि क्षीयन्ते यद्वालेषु काचानावयन्ति सोमान्येवास्य तत्सम्भरन्ति भोर्भवस्सु वरिति प्राजापत्याभिरावयन्ति प्राजापत्यो वा स्वः स्वयमेनं देवतया समर्थयन्ति भोरिति महिषी भुव इति वावाता स्वरिति परिवृक्ति येषां लोकानामभिजित्यै हिरण्यया काचा भवन्ति ज्योतिर्वै हिरण्यं राष्ट्रमस्वमेधः ज्योतिश्चैवास्मै राष्ट्रं च सहस्रं भवन्ति सहस्रसंमिदः स्वर्गो लोकः स्वर्गस्य लोकस्याभिजित्यै अभवा एतस्मात् तेजेन्द्रियं वसवः श्रीक्रामन्ति यो स्वमेधेन यजते तवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण छन्दसेति महिष्यभ्यनक्ति तेजो वा आज्यं तेजो गायत्री तेजसैवास्मै तेजो वरुन्धे रुद्रास्त्वाञ्जन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसेति वावाता तेजो वा आज्यं इन्द्रियं दृष्टव तेजसैवास्मा इन्द्रियमवरुन्धे आदित्यास्त्वाञ्जन्तु जागतेन छन्दसेति परिवृक्ति तेजो वा आज्यं वसवो जगति तेजसैवास्मै वसो न वरुन्धे पत्नयोऽभ्यञ्जन्ति श्रिया वा एतद्रूपं यत्पत्नयाः श्रियमेवास्मिन् तद्दधति नास्मात्तेज इन्द्रियं वसवः श्रीरवक्रामन्ति साजी साजी इत्यतिरिक्तमन्नमस्वायोगाहरन्ति प्रजामेवान्नादीं कुर्वते एतद्देव अन्नमत्तैतदन्नमध्ये प्रजापत इत्याह प्रजायामेवान्नाद्यं दधते यदि नावजिघ्रेत् अग्निः पशुरासीदित्यवघ्रावयेत् अवहैव जिघ्रति
आक्राने वाजे क्रमैरत्यक्रमे द्वाजे यौस्ते वृक्षं पृथिवी सधस्तामित्यश्वमनुमन्त्रयते येषान् लोकानामभिजित्यै समिद्धाञ्जन्कृतरम्मदीनामित्यश्वस्य प्रिया भवन्ति सरोपत्वाय तेजसा वा एष ब्रह्मवर्चसेन विरुध्यते यो अश्वमेधेन यजते होता च ब्रह्माद्यं मदतः तेजसा चैवैनं ब्रह्मवर्चसेन च समर्थयतः दक्षिणतो ब्रह्मा भवति दक्षिणतः वै ब्रह्मा बृहस्पत्यो वै ब्रह्मा ब्रह्मवर्चसमेवास्य दक्षिणतो दधाति तस्माद्दक्षिणोऽर्धो ब्रह्मवर्चसिधरः उत्तरतो होता भवति उत्तरदायतनो वै होता आग्नेयो वै होता तेजो वा अग्निः तेज एवास्योत्तरतो दधाति तस्मादुत्तरोऽर्धस्तेजस्विधरः योपमभितो वदतः यजमानदेवत्या वै योपः यजमानमेव तेजसा च ब्रह्मवर्चसेन च समर्थयतः यज्ञस्विदासीत् पूर्वचित्तिरित्याह जौर्वै वृष्टिः पूर्वचित्तिः दिवमेव वृष्टिमवरुन्धे यज्ञस्विदासीत् बृहद्वय इत्याह अश्वो वै बृहद्वयः अश्वमिवावरुन्धे यज्ञस्विदासीत् पिशङ्गिलेत्याह रात्रिर्वै पिशङ्गिला रात्रिमेवावरुन्धे यज्ञस्विदासीत् पिलिप्पिलेत्याह श्रीर्वै पिलिप्पिला नाद्यमेवावरुन्धे तस्विदेकाकीचरतीत्याह असौ वा आदित्ये एकाकीचरति तेज एवावरुन्धे तवोश्रिज्जायते पुनरित्याह चन्द्रमा वै जायते पुनः आयुरेवावरुन्धे यज्ञस्येद्धिमस्य भेषजमित्याह अग्निर्वै हिमस्य भेषजम् ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे यज्ञस्विदावपनं महदित्याह अयं वै लोकावपनं महद् अस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठति पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या इत्याह वेदिर्वै परान्तः पृथिव्याः वेदिमेवावरुन्धे पृच्छामि त्वा भुवनस्य नाभिमित्याह यज्ञो वै भुवनस्य नाभिः यज्ञमेवावरुन्धे पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेत इत्याह सोमो वै वृष्णो अश्वस्य रेतः सोमपीठमेवावरुन्धे पृच्छामि वाचः परमं व्योमेत्याह ब्रह्म वै वाचः परमं व्योम ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे பொழுது எம்பெருமான் அதாவது ஸ்ரீ போக ஸ்ரீனிவாசர் திருவடி முன்பு அந்த தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பித்து அதற்கு உரிய ஆகம முறைப்படி உள்ள கிரமங்களை செய்விக்க அர்ச்சக சுவாமி அதற்கு முன்பு பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் இடையே அந்த ஒரு சங்கல்பத்தை செய்வதற்காக ஒரு மாலையை புஷ்பத்தை சமர்ப்பித்து அதற்குரிய கிரமங்களை செய்து கொண்டிருக்க இப்படி இந்த கங்கணத்தை கட்டிக்கொண்டு நித்தியபடியாக நமக்கு காட்சியளிப்பதற்கு காரணம் இவர்களின் கருணைக்கு போக்கிடமாக இருப்பது எப்படி என்ன அடியார்களின் குறைகளை தீர்ப்பதுதானே இவர்களின் கருணைக்கு போக்கிடமாக உள்ளது. அதுதான் இவ்விடத்தில் நாம் கண்டு கொண்டிருப்பது. நமக்கு தஞ்சமாக இருக்கின்றார்கள் இவர்கள் இந்த திவ்ய தம்பதிகள். முக்கியமாக பெருமான் திருவுடன் சேர்த்தியை அனுபவித்து மகிழும் பிரபந்தமாக அமைந்துள்ளது பேயாழ்வாரின் அந்த பிரபந்தம். அதாவது முதலில் ஆரம்பித்து
பிராட்டியை ஆரம்பித்து பிராட்டியை துவங்கி இருவரும் சேர்த்திலே நாம் சேவிக்க வேண்டும் என்று திருக்கண்டேன் என்று ஆரம்பித்து முடிவில் திரு என்றே முடிப்பது ஒரு பேட்டிகையாக அமைந்துள்ளது என்பதே பூர்வர்களின் கருத்தாக அமைந்துள்ள ஒரு ஏற்றமான ஒரு விளக்கம். அதாகில் ஒரு பெட்டி, அந்த பெட்டி என்ற பேட்டிகை என்றால் ஒரு பெட்டி, ஒரு கருத்துள்ள ஒரு கருத்து செறிந்த ஒரு பாசுரங்கள் 100 பாசுரங்கள் இருந்தால் அந்த ஆரம்பித்தது தாயாருடல் ஆரம்பித்து முடிவதிலும் தாயாரில் முடிக்கப்பட்டுள்ளது, முடிவடைகிறது, க்ஷமிக்க வேண்டும், முடிவடைக்க செய்துள்ளார் ஆழ்வார். என்னவென்றால் இதற்கு இடையில் உள்ளது தாயாரின் ஆரம்பித்து தாயாரை விட்டு பிரிய முடியாதபடி தாயாருடனே அடங்கி விடுகிறது அனைத்து பிரார்த்தனைகளும். இவனின் கருணாவிலாசம் எப்படி வெளிப்படுகிறது என்றால் தாயாரினாலேயே வெளிப்படுகிறது என்பதே பெரியாழ்வாரின், அதாவது பேயாழ்வாரின் எண்ணங்களாக அமைந்துள்ள ஒரு பேட்டிகையான 100 பாசுரங்கள். பிராட்டியின் வன்மை, ஔதாரியம் போன்ற குணங்களை எடுத்து காட்டியுள்ளது இந்த 100 பாசுரங்களாலே. இவருக்கு உள்ள அனைத்து கல்யாண குணங்களும் அந்த தாயாரின் சேர்த்தியினாலே தான், அனுகிரகத்தினாலே தான் வெளிப்பாடாகிறது, நாம் நன்றாக அனுபவிக்க முடிகிறது என்பதே இந்த விளக்கங்களாக அமைந்துள்ளது. தாமரை பூ போல நீண்ட திருக்கண்களை உடையவள் தாயார் அல்லவா? அதனால் ஆழ்வாரி பாசுரத்தை துவக்கும் போதே சார்பு நமக்கென்றும் என்றே சாதித்தருளியுள்ளார். சார்பு என்றால் பற்றுவதற்கு எளிமையாக திகழும் தாயார் நமக்கு என்றும் துணையாக இருக்கின்றாள் என்பதே ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்துள்ளது. நின் திருவருளும் பங்கையத்தாள் திருவருளும் கொண்டு நின் கோயில் சீத்து என்றும் நம்மாழ்வார் மேலே சாதித்தருளியுள்ளார் மற்றொரு பாசுரத்தில். இந்த பாசுர வரிகளாலே ஆழ்வாரின் பாசுரங்களை அடியொற்றி இந்த பூர்வாச்சாரியர்களும் தாயாரின் முன்னிட்டு கொண்டே நாம் பெருமானை அடைய வேண்டும், அல்லது திவ்ய தம்பதிகளின் சேர்த்தியிலே மிதுனத்திலேயே நாம் பற்றி இருந்து நம்முடைய குறைகளை சொல்ல வேண்டும். குறைகள் இல்லாதவர் யார்? அதுக்கு தானே நாம் செல்கிறோம் இந்த சன்னதிகளுக்கு. இப்படியே ஆளவந்தார் சுவாமி ஆளவந்தாரம் சாதித்தருளியுள்ளது. ஸ்ரேயோ ந ஹரவிந்தலோச்சன மனக காந்தா பிரசாதாத்ருதே சம்ஸ்ருத்யக்ஷர வைஷ்ணவாத்வசு நுணாம் சம்பாவியதே கரிகிச்சித்து என்கிறார். அதாவது தாமரை கண்ணனான ஸ்ரீ கோபால கோவிந்தனின் மனதிற்கு இனியவளான தாயாரின் இனிய கடாட்சம் இல்லாது பக்தர்களுக்கு சம்சாரத்தில் இன்பமும் பகவத் அனுபவமும் உண்டாகாது, சித்திக்காது என்று உறுதிபட சாதித்தருளியுள்ளார். அபராதம் அதாகில் தவறு செய்பவர்களை தண்டிக்காது இருக்க தாயார் ஸ்ரீனிவாசனின் மார்பில் நித்தியவாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறாள். அதற்கு மேல் என்ன? மார்பில் அமர்ந்து கொண்டு இவர்கள் பெருமான் நம்மை நோக்கும் பொழுது நாம் என்ன தவறு செய்து விட்டோம் என்று கண்ணில் வழக்கண்ணை விட்டு கொண்டு பார்ப்பார்கள், அதுதானே. ஆனால் அதற்கு முன்பாக மார்பில் இருந்து கொண்டு தாயார் நம்மை கடாட்சித்து விட்டாள், அந்த தவறு தெரியாது. உடனே அவள் சொல்லுவா, தவறு செய்யாதவர்கள் யார்? பாப்பானாம் வா சுபானாம் வா வதாகராணாம் பிளவங்கம காரியம் கருணமாரியன கச்சின்னா பராதியத்தை அபராதங்கள் செய்யாதவர்கள் யார்? ஆனால் உணர்ந்து நம்மை சேவிக்க வரும்போது அந்த குழந்தைகளை ரட்சிக்க வேண்டும் என்பதே தாயாரின் கருணா கடாட்சம். கடாட்சத்தை விட எண்ணம், அதுவே இங்கே சித்தமாகின்றது. உலகின் கண் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளையும் நேரே காண்பவளாய் இருக்கின்றாள் மார்பில் அமர்ந்து கொண்டு இந்த மகாலட்சுமி. லக்ஷதி தி லக்ஷ்மிஹி என்பதே இந்த திருநாமத்தின் விவரணம். அனைத்து உயிரினங்களின் நன்மை தீமைகளை சிந்தித்து செயல்படுவதாலேயே இந்த தாயாரை பத்மாவதிய லக்ஷ்மி என்றே திருநாமமிட்டு வேதம் அழைக்கின்றது. அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இவளே சாட்சியாக இருந்து கொண்டு அனைவருக்கும் நன்மை தீமைகளை ஆராய்ந்து ஆவண செய்கின்றாள். அந்த பொருளை உடையதாகிறது இந்த ஸ்லோகத்தில். லக்ஷ்மி எனும் சப்தம் இதையே நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறது. இவ்வுலகில் தோஷமற்றவர்கள் கிடையாது. அந்த தோஷத்தை நீக்கி நம்மை ரட்சிப்பாள். மேலே இந்த திருக்கல்யாணி ஆமஜானி கர்ப்பதமா த்வமஜாசி கர்ப்பதாமித்யாஹ பிரஜா வை வசவோ கர்ப்பா பிரஜாமேவ வசோநாத்மன்ஹத்தே ஏவாவா அஸ்வமேதே பௌமானே ஸ்வர்கம் லோகन्न பிராஜானன் தமஸ்வப்ராஜானாத் யத்சோத்ரிபிரசி பதான் கல்பயந்தி ஸ்வர்கஸ்ய லோகஸ்ய பிரஜ்ஞாத்யை गायत्री त्रिष्टं जगतीत्याह धायजुरेवैदत् त्रय्यसोच्यो भवन्ति अयस्मय्यो रजदाहरिण्यः अस्य वै लोकस्य रूपमयस्मय्यः अन्तरिक्षस्य रजदाः दिवाहरिण्यः दिशो वा अयस्मय्यः अवान्तरदिशा रजदाः ऊर्ध्वाहरिण्यः
दिदैवास्मै कल्पयति कस्त्वाच्छदिकस्त्वाभिशास्तीत्याहि कंसायै श्रीराष्ट्रं याश्वमेधेन यजते ऊर्ध्वामेधामुच्छ्रयत श्रीर्वैराष्ट्रमश्वमेधा श्रियमेवास्मै राष्ट्रमूर्ध्वमुच्छ्रयति वेणुभारं गिरा विवेत्याह राष्ट्रं वै भारः राष्ट्रमेवास्मै पर्योहति तथा मध्यमे धतामित्याह श्रीर्वै राष्ट्रस्य मध्यं श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनन्निवेत्याह क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे यद्धरिणीयवमत्तीत्याह विद्वैहरिणी राष्ट्रं यवः विसञ्जैवास्मै राष्ट्रं च समीची दधाति न पुष्टं वसुमन्यत इत्याह तस्माद्राजा पशोन्न पुष्यति शूद्राय दर्यजारानपोषाय धनायतीत्याह तस्माद्वैषे पुत्रन्नाभिषिञ्चन्ते यं यगासकुन्दिकेत्याह विद्वैसकुन्दिका राष्ट्रमश्वमेधा विसञ्जैवास्मै राष्ट्रं च समीची दधाति आहलमिति सर्पतीत्याह तस्माद् राष्ट्राय विशः सर्पन्ति आहदङ्गभेवस इत्याह वेद्वैगभः राष्ट्रं वसः राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद् राष्ट्रं विसङ्घातुकम् माता च ते पिता च दैत्याः इयं वै माता असौ पिता आभ्यामेवैनं परिददाति अग्रं वृक्षस्य राह दैत्याः श्रीर्वै वृक्षस्याग्रं प्रसोलामीति ते पिता गभे मुष्टिमदकं सयदित्याह विद्वै गभः राष्ट्रं मुष्टिः राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद् राष्ट्रं विसङ्घातुकम् अपवायेतेभ्यः प्राणाक्रामन्ति ये यज्ञे पूतं वदन्ति अधिक्रावण्णाकारशमिति सुरभिमतिमृचं वदन्ति प्राणा वै सुरभयः प्राणानेवात्पन्धत्ते नैभ्यः प्राणापक्रामन्ति आपोहिष्ठामयो भव इत्यद्भिर्मार्जयन्ते आपो वै सर्वा देवताः देवताभिरेवात्मानं भवयन्ते प्रजापति प्रजा सृष्ट्वा प्रेणानुप्राविशत् ताभ्यः पुनः सम्भवितुं न शक्नोत् सोऽब्रवीत् रत्नावदेत्सः यो मेतः पुनः सम्भरदिति तन्देवा अश्वमेधेनैव समभवन् यो स्वमेधेन यजते प्रजापतिमेव संहरत्यर्थोति पुरुषमालभते वैराजो वै पुरुषः विराजमेवालभते अथो अन्नं वै विराट् अन्नमेवावरुन्धे अश्वमालभते राजापत्यो वा अश्वः प्रजापतिमेवालभते अथो श्रीर्वा एकशभं श्रियमेवावरुन्धे गामालभते यज्ञो वै गौः यज्ञमेवालभते अथो अन्नं वै गौः अन्नमेवावरुन्धे अजा वै आलभते भूम्ने अथो पुष्टिर्वै भूमा पुष्टिमेवावरुन्धे पर्यग्निकृतं पुरुषं चारण्यागश्च सृजन्ते हि कंसायै उभौ वा एतौ पशो आलभ्येते यश्चापमो यश्चापरमः तेस्योभये यज्ञे बद्धाः अभीष्टा अभिप्रीताः अभिजिता अभिहुता भवन्ति नैनन्दङ्क्ष्णवपशव यज्ञे बद्धाः अभीष्टा अभिप्रीताः अभिजिता अभिहुता हि कंसन्ति यो स्वमेधेन यजते यौ चैनमेवं वेद समेन वा येष स्तोमेन राध्वा चतुष्टोमेन घृतेनायानामुत्तरे हन्ने
एकविकंसे प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठति एकविकंसात् प्रतिष्ठाया ऋतो नन्वारोहति तव वै पृष्ठानि तव संवत्सरः ऋतुष्वेव संवत्सरे प्रतिष्ठाया देवताभ्यारोहति सक्वरय पृष्ठं भवन्त्यन्यदन्यच्छन्दः एते पशव आलभ्यन्ते उदेव ग्राम्याः उदेवारण्याः आहारेव रूपेण समर्थयति अथो अह्न एवैष बलिक्रियते तदाहुः अपसवो वा एते यदजावयश्चारण्याश्च एते वै सर्वे पशवः यद्गव्या इति गव्यान् पशूनुत्तमे हन्ना लभते तेनैव भयान् पशूनवरुन्धे प्राजापत्या भवन्ति अनभिजितस्याभिजित्यै सौरेर्नवश्वेतावसा अनुबन्ध्या भवन्ति अन्तत एव ब्रह्मवर्चसमवरुन्धे सोमायस्वराज्ञेनो वाहावनड्वाहाविति द्वन्द्विनः पशूना लभते अहोरात्राणामभिजित्यै पशुभिर्वा एष व्युध्यते योऽश्वमेधेन यजते स्थगलं कल्माशङ्किकितिविम्मिधिगयमिति त्वाष्ट्रान् पशूना लभते पशुभिरेवात्मानकं समर्थयति ऋतभिर्वा एष व्युध्यते याश्वमेधेन यजते सङ्गास्त्रया वा सन्ता इत्यर्थपशूना लभते ऋतभिरेवात्मानकं समर्थयति आवा एष पशुभ्यः वृक्ष्यते याश्वमेधेन यजते पर्यग्निकृता उत्सृजन्च नावृस्काया प्रजापतिरकामयदमहानन्नादस्यामिति स एतावस्वमेधे महिमानामुपश्यते तावगृह्णीतान् ततो वै स महानन्नादो भवते यः कामयेदमहानन्नादस्यामिति स एतावस्वमेधे महिमानौ गृह्णीता महानेवान्नादो भवति यजमानदेवत्या वै भवान् राजा महिमा यद्भवां महिम्नो भयदः परियजति यजमानमेव राज्येन भयदः परिगृह्णाति पुरस्तात् स्वाहागारा वान्ये देवाः उपरिष्टात् स्वाहागारान्ये एवायेते स्व एव मेध्य उभयेव रुध्यन्ते यद्भवां महिम्नो भयदः परियजति तानेव भयान् प्रीणाति वैश्वदेवो वा स्वः संयत्राजापत्यं कुर्यात् या देवता विभागाः सा भागधेयेन व्यर्थयेत् देवताभ्यः समदं दद्यात् एकान्तकृष्टाभ्यां मन्दोकाञ्चं येभिरिति आज्यमवधानं कृत्वा प्रतिसङ्ख्याय या एव देवता अभिभागाः समर्थयति न देवताभ्यः समदं दधाति चतुर्दशैताननुवाकाञ्जुहात्यनन्तरित्यै तयासाय स्वाहेति पञ्चदश वा अर्धमासस्य रात्रयः देवासुराः संयत्तासन् ते ब्रुवन्नग्नयः सृष्टकृतः अश्वस्य मेध्यस्य वयमुद्धारमुद्धरामहे अचैतानभिभवामेति ते लोहितमुदाहरन्त ततो देवा भवन् परासुराः यत्श्रेष्ठकृभ्यो लोहितं जुहोति भ्रातृव्याभिभोच्यै भवत्यात्मना रास्य भ्रातृव्यो भवति यो मृगकण्ठेन प्रसवामाहुतिं जुहोति असवो वै कामृगः रुद्राग्निश्रेष्ठकृते रुद्रादेव वसोऽनन्तर्दधाति अधो यत्रैषाहुतिर्हूयते न तत्र रुद्रः वसो नभिमन्यते
अश्वसभेन द्वितीयामाहुतिञ्जुहोति रोचनो रोचमानः शोभमानः कल्याणः। అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పనతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పనతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పనతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ చేది విటీలు పూని బంగారు చేది విటీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలు రాగా బంగారు చేది విటీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలు రాగా రంగైన విల్జామరలు రంగైన విల్జామరలు వీవ మాంగళ్యలీల సొంపగు జవరాలు మాంగళ్యలీల సొంపగు జవరాలు వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పనతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ పలుకుల తేనియలులుకా పలుకుల తేనియలులుకా చెంత చిలుకలు కలకల పలుకా పలుకుల తేనియలులుకా చెంత చిలుకలు కలకల పలుకా ప్రబల గెలుపు పావలు ముద్దు గులుక మీటి కలికి చూపుల మొనలు తడుకని చిలుక వచ్చెను అలమేలు మంగ ప్రబల గెలుపు పావలు ముద్దు గులుక మీటి కలికి చూపుల మొనలు తడుకని చిలుక వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ
పచ్చల కడియాల పణతి చలంగా వచ్చెను అలమేలు మంగ సతులెల్ల చేరి రంభాది సతులెల్ల చేరి ఎదుట గంభీర గతులను మీరా రంభాది సతులెల్ల చేరి ఎదుట గంభీర గతులను మీరా నటనారంభములను మేలుకో నటనారంభములను మేలు కోరి కొలువ అంభోజాక్షుడౌ వెంకటేశునొయ్యారి అంభోజాక్షుడౌ వెంకటేశునొయ్యారి వచ్చెను అలమేలు మంగా ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగా వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగా వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగా ఓం అశ్వశవేన ద్వితీయామాహుతింజోతి సవో వా ఏకదభం రుద్రోక్తిస్విష్టకృతే రుద్రాదేవ పశూనందధాతి అథో యత్రైషాహుతిర్హూయతే న తత్ర రుద్రః పశూనభిమన్యతే అయస్మయేన గమండలునా తృతీయాం ఆహుతిం జుహోత్యాయాస్య వై ప్రజాః రుద్రోగ్నిస్విష్టకృతే రుద్రాదేవ ప్రజా అంతర్దధాతి అథో యత్రైషాహుతిర్హూయతే న తత్ర రుద్ర ప్రజా అభిమన్యతే అశ్వస్య వా ఆలబ్ధస్య మేధౌదక్రామతే తదస్వస్తోమీయమభవత్ యదస్వస్తోమీయం జుహోతి సమేధమేవైనమాలభతే ఆజ్యేన జుహోతి మేధో వా ఆజ్యం మేధోస్వస్తోమీయం మేధేనైవాస్మిన్మేధం దధాతి క్షత్రిగం సతం జుహోతి క్షత్రిగం సదక్షరా బృహతి పార్హదా పశవః सा पशूनां मात्रा पशूनेव मात्रया समर्थयति तायद्भूयसीर्वा गणीयसीर्वा जुहुयात् पशून्मात्रया व्यर्थयेत् क्षत्रिगं सतं जुहोति क्षत्रिगं सदक्षरा बृहति
स्वारदा पशवः सा पशूनां मात्रा पशूनेव मात्रया समर्थयति अश्वस्तोमीयगमुहूत्वा द्विपदा जुहोति द्विपाद्वै पुरुषो द्विप्रतिष्ठा तदेनं प्रतिष्ठया समर्थयति तदाहुः अश्वस्तोमीयं पूर्वकं होतव्या द्विपदा इति अश्वो वा अश्वस्तोमीयं पुरुषो द्विपदाः अश्वस्तोमीयगमुहूत्वा द्विपदा जुहोति तस्माद्विपाच्चतुष्पादमत्ति अथो द्विपद्येव चतुष्पदः प्रतिष्ठापयति द्विपदा हुत्वा नान्यामुत्तरामाहुतिं जुहुयात् यदन्यामुत्तरामाहुतिं जुहुयात् प्रप्रतिष्ठायाश्च वेदां द्विपदा अन्ततो जुहोति प्रतिष्ठित्यै प्रजापतिरश्वमेधमसृजता सोऽस्मात् सृष्टोपाक्रामत् संयज्ञकृतभिरन्वयेच्छत् संयज्ञकृतभिर्नान्वविन्दत् तमिष्टिभिरन्वयेच्छत् तमिष्टिभिरन्वविन्दत् तदिष्टीनामिष्टित्वा इष्टिभिर्यजते अश्वमेव तदन्विच्छति सावित्र्यो भवन्ति इयं वै सविता यो वा अस्यान्नस्य धियो निलयते अस्यां वावतं विन्दन्ति न वा इमाङ्गश्च नेत्याहो तिर्यङ्नोच्चेतुमर्हतीति यत्सावित्र्यो भवन्ति सवितृप्रसूत एवैनमिच्छति ईश्वरो वा स्वप्रमुक्तः पराम्बरावदङ्गन्तोः यत्सायं धृतेर्जुहोति अश्वस्य यत्यैधृत्यै यत्प्रातरिष्टिभिर्यजते अश्वमेव तदन्विच्छति यत्सायं धृतेर्जुहोति अश्वस्यैव यत्यैधृत्यै तस्मात् सायं प्रजाः क्षेम्या भवन्ति यत्प्रातरिष्टिभिर्यजते अश्वमेव तदन्विच्छति तस्माद्दिवानष्टैषयेति यत्प्रातरिष्टिभिर्यजते सायं धृतेर्जुहोति अहोरात्राभ्यामेवैनमन्विच्छति अथो अहोरात्राभ्यामेवास्मै योगक्षेमं कल्पयति पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम वीरलक्ष्मी जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ
प्रयच्छ